Hello students, welcome to our YouTube channel MS English Tutorial. I am Vikas sir. Students, in this video we'll read the third poem of class 9 CBSE from the Beehive book. The poem is Rain on the Roof. The poem is Rain on the Roof. It has been composed by Coates Kinney. Coates Kinney was an American writer. We'll talk about it. First of all, we'll talk about the poet, then we'll read the poem, then explain the poem with complicated word meanings. Okay, so let's start without wasting time. Okay, first of all, about the poem. Listen, my dear students. Coates Kinney was a lawyer, actually it must be politician, not political, politician. So Coates Kinney was a lawyer, politician, a journalist and poet of the United States. Means he belongs to United States, means America. Okay. He was born on 24 November 1826 and died on 25 January in 1904. Means 1904 at the age of 77. Means he was born on 24 November in 1826 and died on 25th January in 1904 at the age of 77. He wrote poetry, means he used to write poetry. His poetry was set to music. Generally all his poetry was set to music. Okay. His important works are Rain on the Roof, Koika, Lyrics of the Idle and the Real, Myths of Fire, a trilogy and some eclogues. So these all are the poetry of Coates Kinney. Now first of all we'll know about the poem, then we'll read the poem. Okay. The poem Rain on the Roof is set to music. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया और मैं जानबूझ के हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. Rain on the Roof is set to music. It is the most popular poem of Coates Kinney. No doubt about that. It is the most popular poem of Coates Kinney. And in this poem he says that it is pleasant to live and sleep snugly in a cottage on a rainy night. देखिए बहुत ही अच्छा होता है कि जब वर्षा हो रही होती रात में और एक आप झोपड़े में सो रहे होते हैं, उसका एक अलग ही मज़ा होता है. ठीक है, तो वो पोएट बता रहे हैं द पोएट एक्सप्रेसेस द ब्यूटी ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप. इस पोएम में जो पोएट है वो छत पे गिरने वाली रेन ड्रॉप्स की खूबसूरती, उनकी सुंदरता के बारे में एक्सप्रेस करते हैं थ्रू दिस पोएम. इस पोएम से द पोएट वांट्स टू कन्वे ए मैसेज दैट, इस पोएम से एक मैसेज देते हैं कि ह्यूमन बीइंग शुड स्पेंड मोर टाइम आउट इन नेचर, की मानव जाति को नेचर में अधिक समय बिताना चाहिए. एंड वी शुड इन्जॉय नेचर, और हमें हर हाल में नेचर को क्या करना चाहिए, तो इन्जॉय करना चाहिए. नाउ विल रीड द पोएम रेन ऑन द रूफ. दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा. अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है एक एक करके आप लोग अपनी कॉपी और पेन जरूर निकाल के रखें, क्योंकि हर जब भी मैं पढ़ाता हूँ है ना वीडियो में भी, तो हर एक एक वर्ड जो भी मुश्किल वर्ड्स आपके लिए आते हैं, मैं हर मुश्किल वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन देता हूँ. तो आप लोग अपने कॉपी और पेन निकाल कर रखिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द पोएम. व्हेन द humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. देखिए सबसे पहले बेहतरीन से इसको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि when the humid shadows hover, When the humid shadows hover. देखिए यहाँ पे shadows का मतलब हो रहा है clouds. shadows का मतलब क्या हो रहा है, clouds. ठीक है, आप लोग लिखते जाइएगा. ठीक है, humid का मतलब moisture, moisture. humid का मतलब हो गया moisture, shadows का मतलब हो गया आपका clouds. ठीक है, और hover का मतलब होता है ना, आप कह सकते हैं कि अराउंड समथिंग, और फिर हैंगिंग इन द एयर या फिर फ्लोटिंग इन द एयर, आप ये कह सकते हो. ठीक है, तो राइटर पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि जब ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स. देखिए स्टारी का मतलब होता है फुल ऑफ स्टार्स. स्टारी का मतलब क्या होगा, फुल ऑफ स्टार, और स्पेयर्स तो मतलब जान ही रहे आकाश.
स्काई, ठीक है, इसका मतलब क्या, स्काई। तो राइटर कहते हैं कि जब आकाश में, मतलब तारों से भरी आकाश में अगर बादल छा जाए और उस बादल में नमी हो, उस बादल में क्या हो, नमी हो, एंड द मेलॉन्कली डार्कनेस, और ऐसा लगे कि पूरा का पूरा डार्कनेस हो जाए, ठीक है। अब देखिए डार्क कब होता है, जब कोई भी चीज़ उदास हो। कहने का मतलब होता है ना कि आप कह सकते हो फीलिंग ऑफ सैडनेस। मेलॉन्कली का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सैडनेस, मतलब ऐसा लगता है कि आकाश में जो है बादल छा गए हैं और वो बहुत ही उदास है, और जेंटली बीप्स इन रेनी टीयर्स, और वो इतना ज़्यादा उदास है, उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, और वो रो रहा होता है। और वो जो रोता है ना, तो वो जो रेनी टीयर्स का मतलब है उसकी आंसू जो है वो वर्षा के रूप में बहते हैं, है ना। जब बादल रोता है तो उसकी आंसू जो है वर्षा के रूप में बहते हैं, जो ज़मीन पे आके गिरती है, ठीक है, वर्षा की बूंदों के रूप में। व्हाट अ ब्लीस टू प्रेस द पिल्लो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड। तो राइटर कहते हैं कि व्हाट अ ब्लीस, मतलब वो कहते हैं इट वॉज अ ग्रेट ब्लीस। व्हाट अ ब्लीस का मतलब क्या हुआ, इट वॉज अ ग्रेट ब्लीस, मतलब इट वॉज अ ग्रेट हैप्पीनेस, है ना। ये एक बहुत बड़ी खुशी होती है टू प्रेस द पिल्लो, मतलब तकियों को दबा कर सोना। कहाँ पे, तो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर। कॉटेज चैम्बर का मतलब बेडरूम, जो आपका झोपड़ी है उसमें जो बेडरूम है उस पर सोना। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और आपको क्या करना, जैसे कि मैंने बताया ये जो व्हाट अ ब्लीस है इसका मतलब आप लिख सकते हैं इट वॉज अ ग्रेट हैप्पीनेस, है ना, या फिर लिख सकते हैं इट वॉज अ ग्रेट जॉय, सॉरी इट इज़ अ ग्रेट जॉय, ठीक है। टू प्रेस द पिल्लो मीन्स तकिया ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर। पैटर का मतलब होगा वही साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, ठीक है, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। मतलब कि वो जो, जैसे देखिए छत पे जब आप रूम में सोए हुए हैं, छत पे जो आपकी आवाज़ें आ रही है उसकी एक अलग ही फीलिंग्स होती है। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट स्टेंजा की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेंजा में राइटर ये पोएट ये कह रहे हैं कि आकाश में बादल छाते हैं कब, तो जब वो उदास होता है, पूरा डार्कनेस आ जाता है, और उदास होने के बाद वो बादल क्या करता है, रोना स्टार्ट कर देता है, और वो जो रोना स्टार्ट कर देता है ना, तो उसके आंसू जो है रेन ड्रॉप्स के रूप में ज़मीन पे गिरते हैं, ठीक है। तो जब वो गिरते हैं खास करके अगर नाइट में, तो वो एक अलग प्रकार का फीलिंग्स हमारे दिल में जगा देता है, ठीक है। आगे देखिए पोएट क्या बताना चाहते हैं। मैं स्टैंजा नंबर 2 लेने वाला हूँ, ध्यान देंगे। स्टैंजा नंबर 2, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स। अब देखिए यहाँ पर टिंकल का मतलब क्या हो रहा है, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स। यहाँ पर टिंकल का मतलब जो है माय फ्रेंड्स, ये जो टिंकल है ना, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से, है ना, ये टिंकल का मतलब हो रहा है वही रिंगिंग साउंड, ठीक है। टिंकल का मतलब क्या हो रहा है, वही रिंगिंग साउंड, ठीक है, वो जो क्लियर जो साउंड है किस चीज़ का, तो वर्षा की, जो टिंकल साउंड ऑन द सिंगल्स। अब देखिए सिंगल्स का मतलब क्या होता है, सिंगल का मतलब होता है रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स। देखिए मतलब ये लकड़ी का जो टाइल्स होता है रेक्टेंगुलर, जनरली आप इसको ये कह सकते हो कि जैसे आपका कोई झोपड़ी हो, है ना, और देखते हैं पुराने ज़माने का जो छत होता था वो ढलाऊ बना होता था छत, ठीक है, वो छत जो है ढलाऊ बना रहता है दोनों तरफ से, इस तरीके से जो छत होती है ढलाऊ रहता है पूरा, ठीक है। हालांकि मैं बना नहीं पा रहा हूँ, आप लोग अंडरस्टूड कर लोगे। और उस छत पे जो है, जैसे मान लीजिए लकड़ी का या फिर खपड़ा आप लोग समझते होंगे, है ना, अगर अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, तो जस्ट लाइक अ टाइल्स यू कैन से। तो जब उस पर गिरते हैं ना, तो हैज़ एन इको इन द हार्ट, तो दिल में एक क्या होती है, एक साउंड आता है, एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और हजारों सपने आने शुरू हो जाते हैं इनटू बिजी बीइंग अ स्टार, ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब हजारों सपने जो है दिल में उमड़ कर आ जाते हैं, एंड 1000 रिकलेक्शंस का मतलब मेमोरीज होता है, पास्ट मेमोरीज आप कह सकते हो, पास्ट मेमोरीज, और पास्ट की हजारों मेमोरीज दिमाग में आ जाती है, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू द ऊप, ठीक है। और ऐसा लगता है कि वो जो मेमोरीज है वो एक, मतलब जो है ना, जैसे आप ऊन वगैरह देखते हैं, वुमेन पिक्चर देखते हैं, मतलब उस तरीके से लगता है कि मतलब पूरे दिल में आ जाते हैं। मतलब एक जो है ना, जैसे मान लीजिए आप कोई रील वगैरह देखते हो
जिसमें बहुत सारे धागे गूंथे रहते हैं। तो मतलब उसी प्रकार से एज अ लिसन टू द पैटर, जैसे जब सुनते हैं क्या, तो ही पैटर मतलब साउंड को, रेन ड्रॉप को, ऑफ द रेन ऑन द रूफ, मतलब जब हम वर्षा की बूंदों को जो है, वर्षा की साउंड को जब हम अपने छत के ऊपर सुनते हैं तो हजारों प्रकार की यादें आ जाती हैं दिल में। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ मोटा मोटी, अगर मैं सेकेंड स्टेंजा की बात करूँ तो पोएट जो है अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, पास्ट के बारे में याद करते हैं कि जब वर्षा मतलब एक बार फिर से जब वो एक कॉटेज में सोए हुए थे, है ना, वो वर्षा जब रात में स्टार्ट हुई तो उनको जो है पास्ट की बहुत सारी यादें आ गई। हालांकि कौन कौन सी यादें थी मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो उसका जो है थर्ड स्टेंजा में देखिए कि थर्ड स्टेंजा में क्या है। तो राइटर कहते हैं नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, कि मतलब उसी रात जो है जब वर्षा की मतलब उनकी जो हजारों सपने, हजारों यादें हैं, उनमें वो अपनी माँ को याद करते हैं। एज इज यूज्ड इन ईयर्स अगोन, अगोन मतलब होता है अगो, ठीक है, पास्ट टाइम में, कि मतलब वो पास्ट टाइम में क्या करती थी, क्या किया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एयर, है ना, यहाँ जो देखिए एयर है, सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, है ना, यहाँ पर एयर का मतलब हो रहा है वही ईरा, ठीक है, मतलब बहुत साल पहले की बात हो रही है कि वो क्या करती थी, तो छोड़ देती थी सबको सोने के लिए डाउन तक। डाउन मतलब यहाँ पर क्या होगा, डे ब्रेक, टिल द मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग तक छोड़ देती थी सोने के लिए। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, है ना, मैं महसूस कर सकता हूँ कि उनकी जो प्यार था जो मेरे ऊपर बरसता था। एज आई लीज टू दिस रिफ्रेन, और ये तो देखिए रिफ्रेन का मतलब हो रहा है रिपीटेड, आप कह सकते हो जो साउंड ऑफ द रेन है उसी को यहाँ पर कहा गया है कि बार बार जो वो पढ़ रहे हैं तो उसको लिस्ट कर सकते हैं। लिस्ट का मतलब लिसन का ये शॉर्ट फॉर्म है। वो पोएट लोगों का स्टाइल होता है उसमें लिखने के लिए, वो उनके पास पोइट्री का स्टाइल होता है, किसी भी शब्द को बड़ा करके लिख सकते हैं, किसी भी शब्द को छोटा करके लिख सकते हैं। तो ही कहते हैं एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, कि मैं इस साउंड को सुन रहा हूँ वर्षा को, विच इज प्लेड अपन द सिंगल्स, जो कि सिंगल्स पर आके गिर रहे हैं, बाय द पैटर ऑफ द रेन, मतलब वो जो रेन के ड्रॉप जो गिर रहे हैं, वो जो आवाज़ें आ रही है उसको वो सुन रहे हैं। तो देखिए अगर इस पोएम में देखा जाए तो बहुत ही आसान से आपने कह दिया, है ना, कि देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेंजा में देखा जाए तो फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने क्या किया, तो भाई आकाश मतलब एक रात एक दिन की बात, मतलब सॉरी एक रात है जब आकाश में पूरे तारे भरे हुए हैं और उसी बीच क्या होता है, पूरे बादल चारों ओर छा जाते हैं आसमान में, और ऐसा लगता है ना कि बादल बहुत ज़्यादा दुखी है, उदास है, जिसके कारण चारों तरफ क्या किया है, तो डार्कनेस ले आया है, और उदास होने के कारण वो बादल जो है रोना स्टार्ट कर दिया और वही बारिश के रूप में नीचे गिर रहे हैं। तो राइटर ये कहते हैं कि उसमें जब वो वर्षा होती है तो उसमें एक अलग प्रकार से फीलिंग्स आती है और उसमें सोने का, है ना, एक अलग मचा होता है, बहुत ज़्यादा आनंद आता है, ठीक है। और जब वो छत पे जो उनका गिरता है, जिसमें जो वुडन सिंगल्स लगे हुए हैं, रेक्टेंगुलर जो सिंगल्स लगे हुए हैं, वो जो टाइल्स लगा हुआ है छत पे, है ना, तो उस पर जब आवाज़ें गिरती है, छोटी छोटी बूंदें जो गिरती है रेन की, वो बहुत ही मतलब सुहावना होता है। और इससे क्या होता है, उनके दिल में हजारों पुरानी यादें आ जाती है। उनमें से वो अपनी माँ को भी याद करते हैं कि किस प्रकार उनकी माँ उनको प्यार किया करती थी, और किस प्रकार जो है जब वर्षा रात में हुआ करती थी तो उनकी माँ उन्हें सोने के लिए छोड़ दिया करती थी। तो इस तरीके से पोएम तो है, लेकिन देखिए अगर डीप मीनिंग की बात करूँ तो डीप मीनिंग क्या है इस पोएम में। तो इस पोएम में अगर मैं डीप मीनिंग की बात करूँ तो देखिए, तो यहाँ पर राइटर जो है, ऑलरेडी मैंने बताया कि पोएट जो है नेचर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो जो मेन मैसेज है इस पोएम में वो ये है ना, कि देखिए हर इंसान की जीवन में अगर खुशियाँ आती है तो उसके पास्ट की जो दुख भरी चीज़ें होती है वो भी उसे वो क्या करते हैं, याद करते हैं, और इस खुशी से वो अपनी पास्ट की दुख को भुलाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है ना, और आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता होगा पोएम में तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो मेरे ख्याल से आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और इसको क्या करिए, तो देखिए इधर प्रैक्टिस सेट्स भी हैं, इसको आप लोग बनाने का प्रयास करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इस सब को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, है ना, और
क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको एक्सपीरियंस होगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू हैव एक्सपीरियंस। ओके, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।